ہمارے چینل اللہ اولیاء تاجی کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے۔ توجہ ہے نا؟ کہا میرے گھر میں آ جا، اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو پھر میرے گھر میں آ جا۔ اور وہ سب کو یاد ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت جبریل نے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ ماں کے شکم میں آ گئے، ولادت کا وقت آیا تو آپ کہاں تھی؟ بیت المقدس میں تھی۔ رب نے حکم دیا مریم بیت المقدس سے باہر آ جاؤ۔ کعبہ بھی مسجد ہے، بیت المقدس بھی مسجد ہے۔ فرق دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ کی امی بچے کے ولادت کے وقت حرم اس مسجد اقصی میں تھی، حکم ہوا باہر نکلو، اور جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے باہر تھی، حکم ہوا اندر آ جاؤ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اس روایت سے حضرت علی حضرت عیسیٰ سے رتبے میں اعلیٰ ہو گئے، مرتبے میں بلند ہو گئے، اور یار نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ بس مثال کے طور پہ اتنا سمجھ لو، اگر نانا نواسے کو کندھے پہ بٹھا لے تو کیا نانا نواسے سے چھوٹا ہو جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ نانا نانا ہی رہے گا، نواسا نواسا ہی رہتا۔ دادا پوتے کو بٹھا لے تو دادا دادا ہی رہے گا، پوتا پوتا ہی رہے گا۔ لیکن یہ رتبے کس لیے کہ ادھر جو پیدا ہو رہا ہے یہ میرے محبوب کا یار دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جزاک اللہ، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، 3 دن گزر گئے۔ کتنے؟ زور سے، اگر تم نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھوں گا، پھر کھانا بھی لیٹ ہوگا۔ کتنے؟ ماشاءاللہ کھانے کی زیادہ ضرورت ہے، کھانے کی دھوس میں بولے آ کر کے، اچھی دھمکی ہے یہی دے لیا کریں گے۔ بول تو ذرا یا رسول اللہ۔ کتنے؟ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد حضور تشریف لائے اپنے چچی کے گھر، حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس۔ آ کے کہنے لگی چچی لاؤ اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو۔ کیا کہا؟ اپنا شہزادہ؟ میں عجیب الٹا مولوی ہوں، سبق سنتا بھی ہوں، خالی بول کے نہیں تمہیں بھی یاد کرانا۔ اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو۔ جو بول گئے اللہ ان کی نسلیں آباد رکھے۔ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی بھی جانتا ہے، ہمارا نبی بھی جانتا ہے کس کے دل میں علی کا پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی، منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر تیرا نام سن کے چہرہ بگڑ جائے تو پکا منافق ہوتا ہے، اور تیرا نام سن کے چہرے پہ بہاریں آ جائیں تو وہ پکا جنتی ہوتا ہے۔ ہاں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بوجھ سمجھ رہے ہو نا تو میں معراج بھائی کے کہنے پہ آیا ہوں یہاں تک، ورنہ اللہ کا شکر ہے بندوں کے نمبر بھی نہیں لگتے ہیں۔ تو کم سے کم خدا کے بندو، اگر آپ نے آج وقت دیا، ہم نے آج دیا ہے، تو کچھ بیٹھنے کا، کچھ کھانے کا، کچھ آنے کا حق تو ادا کیا کرو۔ ذرا سارے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھ کے، بس دل بڑا ہو گیا میرا۔ توجہ کریں، 3 دن کے بعد گئے، کہا چچی میری گود میں اپنا شہزادہ دے دو۔ اتنی بات سنی نا حضرت فاطمہ بنت اسد رونے لگی۔ جب روئی نا وہ خاتون جس کو میرا نبی ماں کی طرح پیار کرتا ہے، جو جانوروں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ ماں کی آنکھ میں آنسو کب گوارا کر سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا چچی اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ رونے کی کون سی وجہ ہے؟ کیوں روئی ہیں؟ اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا رسول اللہ، آج 3 دن ہو گئے ہیں بیٹے کو دنیا میں آئے ہوئے، ابھی تک بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے بیٹا آنکھوں سے نابینا تو نہیں ہے، کہیں اس کی آنکھیں ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ دیکھ نہ پائیں۔ میرے نبی نے اللہ اکبر اتنا سنا، ہاتھ بازو آگے پھیلائے، کہتے ہیں لاؤ ذرا میری گود میں دو۔ جیسی مصطفیٰ نے حضرت علی کو گود میں لیا ہے، فوراً حضرت علی نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ جیسی آنکھیں کھولی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد، اے میری چچی، تم کہہ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اسے نظر نہ آئے۔ آقا فرماتے ہیں چچی جان یہ نابینا نہیں ہے، سچ تو یہ ہے جتنی بصیرت و بصارت خدا نے اس علی کو دی ہے کائنات میں کسی بیٹے کو نہیں دی گئی۔
अल्लाहु अकबर, ये मेरे मौला अली हैं। सोचो पैदा कहाँ हुए? सारे बोलो अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात? कहाँ पैदा हुए? काबे में। हम लोग यहाँ से 3 लाख खर्च करके जाते काबा देखने के लिए। कितना खर्च करते? 3 लाख काबा देखने के लिए। और अली काबे में पैदा हुए, लेकिन काबे को नहीं देखा। जो कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह ही, वो जरा गौर से सुने। अली पैदा हुए काबे में, लेकिन काबे को आंख खोल के नहीं देखा। आंख कब खोली? जब गोदे मुस्तफा में आए। अली काबा वो जगह है कि जिसकी तरफ नमाज का इरादा हो, भारत वाले रुख करते ही काबे की तरफ, पाकिस्तान वाले रुख करते ही काबे की तरफ, अमेरिका का मुसलमान रुख करता है काबे की तरफ। लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते काबा देखने के लिए, खिलाफे काबा छूने के लिए, आबे ज़मज़म पीने के लिए लाखों पैसे खर्च करके जाते हैं, तब जाके काबे तक पहुंचते हैं। ए अली, तुम तो पैदा ही काबे में हुए, फिर काबे को क्यों ना देखा? आज भी नजफ अशरफ से आवाज आती है, और नादान में अली हूँ अली, मैं काबा बाद में देखूंगा, पहले काबे का काबा देखा जाए। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सबसे पहले काबे का काबा देखा, और फिर जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी। फिर वो दिन आया, इधर अली की विलादत, उधर सैयदा फातिमा ज़हरा की विलादत। समझ रहे ना मेरी बात? अब निकाह हुआ, हजरत अली और फातिमा ज़हरा के निकाह की बात की जाए तो ये अलग मौजूद, लेकिन बस थोड़ी सी इनकी मोहब्बत की जो फिर अल्लाह की तरफ से खैरात मिलती है ना, तो जरा उसके मजे ले और उसकी बरकतें देखे कितनी होती है। आ रहा है मुहर्रम शरीफ का महीना, कोई बंदा सबील का इंतजाम करेगा, कोई बंदा हलीम का इंतजाम करेगा, किसी के दरवाजे से गुजरने वाला कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी प्यास न बुझाई जाए। और हम सबील लगा के जमाने को बताते हैं, दुनिया वालों हम यजीदी नहीं हुसैनी हैं। तुमने हमारों को पानी बंद करके प्यासा रखा था, आज हम हर गुजरने वाले को पानी पिला के बता रहे हैं, लोगों कयामत तक जितना भी पानी बटेगा मेरे हुसैन की खैरात बांटी जाएगी। यही होना है ना, यही होगा। सबील लुटेंगे, लंगर चलेंगे, और कुछ लोगों के पेट में भी दर्द होगा। कोई कहेगा सबील शिरक है, कोई कहेगा लंगर हराम है। ऐसे 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 गोले मारते हैं, सीधे साधे मुसलमान चित हो जाते हैं। अरे सही कह रहे हैं, अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा होता, वली का नाम ले दो, बिस्मिल्लाह के अल्लाहु अकबर की जगह अगर किसी ने किसी वली का नाम ले दिया, जानवर हराम हो जाएगा। हाँ समझ में आ गई उसके भी, अल्लाह के नाम से हलाल है तो फिर हुसैन के नाम से हराम क्यों नहीं होगा? वो गुमराह करके चला गया, भाग गया डेला मार के। और इससे पूछ, अगर इसकी कहीं मौका लग जाए ना, आस्तीन ऊपर करके कोनी कोनी हाथ सर्दे में डाल देता है। हमें रोक रहा है। कई सारी मिसालें, जब फंसे ना तो नाक तक भर भर के खा के आई। बस तवज्जो करना मेरी बात पे, कितनी बड़ी बरकत है वो यार। उनका तो नाम भी बड़ा है, उनकी तो निस्बत ही बड़ी है। यमन का एक बादशाह हुआ, तवज्जो करें, यमन का एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह। उसके पास बहुत बड़ी फौज थी, हुसैन की मोहब्बत का सिला देना, बहुत बड़ी फौज उसके पास थी। एक दिन उस बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया ना, उसकी जगह पे उसका बेटा तय्यब नामी बैठा। कौन? तय्यब उसका बेटा था, बादशाह का, यमन के बादशाह का बेटा तय्यब था। और वो उसकी गद्दी पे जब बैठा, उसने हुक्म दिया, जितनी पुरानी फौजें सब खत्म कर दो, यानी सबको माजूल कर दो, जवान जवान लोग भर्ती किए जाएं। जी डरना मत, मैं ये नहीं कहूंगा जितने बड़े बूढ़े उन्हें हटा दो, जवानों को बैठा रहे। माशाल्लाह बोल रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं या ज्यादा बोल रहे हैं जी। और फिर हम कौन उठाने बैठाने वाले होते हैं? ये जिनकी महफिल है वो जाने, या फिर ये आने वाले जाने। अपना तो कोई काम नहीं, अपनी ड्यूटी और नौकरी ये है कि तुम्हें कुछ बातें बताते। वो बैठा तय्यब नामी बादशाह, उसने नई फौज भर्ती कराई, जवान जवान लोग भर्ती किए गए। जब जवान भर्ती हुए, और उसने कहा जब जवान भर्ती हो जाए, फौज कंप्लीट हो जाए, तो फिर मुझे बुलाना, मैं उसको देखूंगा कि फौज कैसी है मेरी। जवान लोग भर्ती किए गए, बूढ़े निकाले गए। किसी ने तय्यब से जाके कहा, सुन पूरी फौज तैयार हो गई है, अपनी फौज को देख ले। वो
वो बादशाह आया। आने के बाद उसने फौज को देखा, जहां तक नजर जा रही थी सर ही सर थे, जिधर नजर घूम रही थी तलवारें ही तलवारें थी। अचानक फौज को देखा, चीख मारी, जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। फिर होश आया, उठा, अपने महल में चला गया। 3 दिन के बाद वजीर ने पूछा, बादशाह अगर गुस्ताखी माफ हो एक बात पूछूं? कहा कौन सी बात? कहा बादशाह अपनी फौज देख के बेहोश हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? कहने लगे जब मैंने फौज पे निगाह डाली तो मुझे करबला के हुसैन याद आ गए, मुझे उनके जमा का असगर याद आया और मुझे ख्याल आया काश मैं करबला में मौजूद होता जब उनका अली असगर दरियाए दजला और नहरे फुरात 2 दरियाओं के बीच प्यासा रहा। काश उस वक्त मैं होता, मेरी फौज होती, मैं अपना एक एक फौजी उनके कदमों पे कुर्बान कर देता और नहरे फुरात खोद के लाके अली असगर के कदमों पे लाके बिछा देता, लेकिन हुसैन के शहजादों को प्यासा न रहने देता। आज ये फौज है, इसका क्या करूं? का इस ख्याल ने मुझको रुला दिया और इस दर्द से बेहोश हो गया। कुछ दिन इसने हुकूमत की, कुछ सालों के बाद जब इंतकाल हुआ, इसकी बस्ती में किसी ने ख्वाब में देखा कि ये तय्यब नामी बादशाह अब जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा है। उसने कहा बादशाह, बादशाहों के हिसाब तो बड़े सख्त हुआ करते हैं, इतनी जल्दी आप जन्नत में कैसे आ गए? तो तब तय्यब नामी बादशाह ने कहा था लोगों से जाके कह देना जो तूने सवाल किया है सच किया है। जब मैं कब्र में आया था तो नेकियां नहीं थी, अगर हिसाब की बारी आ जाती तो फिर बचाने वाला कोई ना था, मेरे पल्ले में तो नेकियां ही नहीं थी, गुनाह ही गुनाह थे। का फिर पता तो सही आखिर यहाँ कौन सी नेकी लेके आ गई है, किस अमल ने यहाँ तक पहुँचाया है, कब्र की मंजिल कैसी गुजरी? उसने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है, जब तुमने मुझे कब्र में लिटाया, तख्ते लगा के मिट्टी डाली, मनो मिट्टी ढाल के वापस पलटे तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए, उनके चेहरे डरावने थे, बड़ी भयानक आवाजें थी उनकी, बड़े अजीब अंदाज में कब्र में आए हैं। जैसी मेरी कब्र में आए हैं, आने के बाद उन्होंने मुझे कब्र में उठा करके बैठाया और मुझे बैठाने के बाद सबसे पहला मुझसे सवाल करने ही वाले थे कि इतने में मैंने देखा कि कोई पीछे से बड़ी तेज रफ्तार सवारी से आ रहा है, उसने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था, वो मेरी कब्र के करीब आया, आने के बाद मेरे पास आके ठहर गया। इतने में फरिश्तों ने कहा मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? कहा जैसे फरिश्तों ने इतना कहा था, आने वालों ने कहा फरिश्तों ठहर जाओ, इससे कोई सवाल मत कर लेना, जो भी सवाल करना है मुझसे करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने में आया हो। कहा जब आने के बाद उसने इतनी बात कही थी, फरिश्तों ने न जाने क्या देखा और वो इतना सुनने के बाद फरिश्ते वापस जाने लगे और वो आने वाला जाने लगा। तो मैंने कहा था मेहरबान बता तो सही कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इस कब्र में क्यों आया है और मेरी मदद क्यों की है? तब तय्यब ने कहा था और पूछने वाले, जब मैंने इतना सवाल किया था, आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया और हटा के कहा था तय्यब पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि दुनिया मुझे हुसैन कहा करती है, नबी का शहजादा कहा करती है। आका किस लिए आए हो? का याद कर वो वक्त जब तुझे खुदा ने ताकतवर फौज से नवाजा, तूने अपनी फौज को देखा, देखने के बाद मेरे बच्चों को याद किया, मुझे याद करके मेरे गम में आंसू बहाया था। तय्यब हम बड़े लजपाल हैं, हम बड़े सखी हैं, अपने ऊपर एहसान करने वालों का बदला बाकी नहीं रखते हैं। तूने हमारे गम में एक आंसू बहाया था, हम तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके जाएंगे। साहिब ये इनकी वफा है, ये इनकी मोहब्बत है, अगर इनसे प्यार करो खुदा की कसम फिर ये साथ निभाते हैं, फिर ये साथ निभाते हैं, मगर शर्त है फिर प्यार भी इनसे होना चाहिए। दर बदर क्यों फिर रहे हो, आप पहचानो इन्हें, और फर्श पर है अर्श के, हाँ फर्श पर है अर्श के मेहमान ताजुल औलिया, फर्श पर है अर्श के